Here, limitations of the first law of thermodynamics. First law, it does not indicate the direction of transfer of heat. It does not indicate the direction of transfer of heat. Heat always flows from higher temperature to lower temperature. Why heat does not flow? Heat always flows from higher temperature to lower temperature. Why heat does not flow from lower temperature to higher temperature? Why heat does not flow from lower temperature to higher temperature? It was not explained by the first law. Second limitation, under which condition heat will be, second one, under which condition heat will be converted into work, heat will be converted into work. Under which condition heat will be converted into work? If kinetic energy is converted, no doubt, if kinetic energy is converted into heat, then the heat should be also converted into work. But it does not indicate this conversion. But this does not indicate the condition of the conversion, but it does not indicate the condition of the conversion. बंदूक से गोली चलाएं तो होल काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वह काइनेटिक एनर्जी फिर कन्वर्ट होकर के बुलेट को रोल बैक कर दे कि फिर चला आए बंदूक में। इस तरह की कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। भले उस ज़माने में अक्षय तर्कस हुआ करता था, मैंने जो रामायण की किंवदंती है कि पीछे खाली रखते थे और कभी ख़त्म ही नहीं होता था, क्योंकि जाता था फिर चला आता था, लगातार काम होता था। इस तरह की चीज़ अभी हमारी साइंस बहुत पीछे है। थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट इंडिकेट the extent up to which heat energy is converted into work. Indicate the extent अगर खराब लग रहा है तो proportion लिखते हैं, माने extent माने किस हद तक। तो it does not indicate the proportion of the heat converted into work, ये लिख लो ज़्यादा ठीक लगेगा। It does not indicate the proportion of heat is converted into work। किस proportion में heat convert हो जाती है? It does not indicate the proportion of heat is converted into work। It is found that no heat engine is capable to convert whole heat into work. Engine is capable to convert whole heat into work. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख लेना।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसमें दो स्टेटमेंट लिखा जाता है, एक होता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक लिखो, अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन which can convert whole heat into work. It is impossible to construct an engine which can convert whole heat into work. Whole heat into work. ये इसने बताया कि ऐसा इम्पॉसिबल है कि कोई इंजन बनाया जाए जो सारी हीट को, इसने एक स्टेटमेंट दे दिया और उस स्टेटमेंट का कोई प्रूफ नहीं दिया, लेकिन दुनिया की कोई ऐसी मशीन बनी भी नहीं जो इसके स्टेटमेंट को वायलेट कर दे। ये वैसे ही है जैसे गॉड एग्जिस्ट एंड गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। गॉड अगर है, मानते सब लोग, कोई प्रूफ आज तक नहीं दे पाया कि है कि नहीं, और डज नॉट एग्जिस्ट, इसके लिए भी तमाम लोग हैं स्टेटमेंट देने वाले कि डज नॉट एग्जिस्ट, उसका भी कोई प्रूफ नहीं दे पाया। सेकंड लॉ कुछ ऐसा ही, इट इज इम्पॉसिबल, खाली स्टेटमेंट दे दिया। इसका यही ड्रॉबैक कहा जाता है कि व्हाट इज ड्रॉबैक, कि इट डज नॉट नेवर गिव एनी प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट, लेकिन ये प्रूव्ड है। इसको दुनिया का कोई, अगर यह स्टेटमेंट किसी को गलत करना है तो ऐसा इंजन बनाओ जो कि 100% एफिशिएंट हो। तो यह भी एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट इसका है क्लासियस स्टेटमेंट। सेकंड इज क्लासियस, क्लासियस स्टेटमेंट, CLAUSIUS, यूएस स्टेटमेंट। क्लासियस स्टेटमेंट, according to this, according to Clausius, it is impossible to transfer heat from, it is impossible to transfer heat from lower temperature to higher temperature without doing some work, lower temperature to higher temperature without doing some work by the external agency, by doing some work it is impossible to transfer heat from lower temperature to higher temperature without doing some work by the external agency on the lower temperature, on the lower temperature। lower temperature पर जब तक काम ना किया जाए तब तक नीचे से हीट ऊपर नहीं जाती। और हम रेफ्रिजरेटर देखते हैं, एसी देखते हैं कि कमरे की लोअर टेम्परेचर को हायर टेम्परेचर की तरफ भेज देता, और अंदर जो है हमें गर्मी के दिन में भी जाड़ा लगने लगती है अगर ठीक से कर दिया जाए, एसी खोल दिया जाए तो। ये हमारा
फर्स्ट ये हमारा ये जो है सेकेंड लॉ है। फर्स्ट लॉ कि दुनिया का कोई हीट इंजन 100% एफिशिएंट नहीं है विच कैन कन्वर्ट होल हीट इनटू वर्क। सेकेंड स्टेटमेंट इसका है इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर होता है ना, तो कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करके अचानक एक्सपैंड कर देता है। तो रेफ्रिजरेटर में यही होता है कि वो फ्रियान गैस होती है ना, CCl2F2 नाम सुने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियान गैस का नाम सुने होंगे, CCl2F2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही CFC कहा जाता है ना, जो कि ओजोन लेयर में होल कर दिया, तो जा करके O3 जो है ठंडी में सिकुड़ा रहता है और जाके एक ऑक्सीजन को तोड़ देता है, तो O2 बन गया, बस उड़ गया, बस O3 होता है ना ओजोन, उसको जाके एक बांडी तोड़ देता है जाके, और तोड़ दिया तो कमज़ोर हो जाता है। O3 है मजबूत है, 3 बांडी, और जैसे ही गया एक ऑक्सीजन मार देता, अलग हो गया, O2 बन गया। O2 बड़ा कमज़ोर होता है, ऑक्सीजन गैस ना है, उड़ गया, उसकी कहानी ख़त्म, होल बढ़ता चला जा रहा है। अब इस पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो ये सब वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग पैदा करते हैं। हमारे यहाँ कौन एसी में चलता है, कम लोग हैं, तो उधर ज़्यादा है। और छेद हो रहा है अंटार्कटिका में, पता लगा कि सबसे ज़्यादा पैदा जो कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़, क्योंकि ये वहाँ पर होल जहाँ होता है जहाँ पर बहुत कोल्ड है, और कोल्ड होगा तो O3 एकदम सिकुड़ा होता है, एकदम कंट्रैक्ट फॉर्म में रहता है O3 में जाके एक ऑक्सीजन को उड़ा देता है, और बस O2 बन गया, बस कहानी खत्म, बस पूरा होल। ऑस्ट्रेलिया का जितना एरिया है उतना बड़ा होल हो चुका है, काफ़ी बड़ा होल है। खैर ये स्टेटमेंट दोनों समझ में आ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, इसका नाम लिखना पड़ेगा एग्जाम में अगर आएगा, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो इसके भी लिमिटेशन लिख लो, लिमिटेशंस ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लिमिटेशंस ऑफ second law of thermodynamics. Note down the second law cannot be proved directly. Second law cannot be proved directly, but its validity cannot be challenged. But its validity cannot be challenged. But its validity cannot be challenged. No machine has been designed so far which can challenge the second law of thermodynamics. No machine has been designed so far which can challenge the second law of thermodynamics. Second statement, it is applicable only in cyclic process. It is applicable only in cyclic process. That is, system returns to its initial position. That is, system returns to its initial position after a complete cycle of changes. After a complete cycle of changes. हमारा जो इंजन है यह रिवर ए साइक्लिक में ही चलता है, मतलब ये एक्सपैंड हुआ, फिर कंप्रेस हुआ, फिर ऐसे ही चलता हमारा इंजन। एक बार एक्सपैंड हुआ, फिर कंप्रेस हुआ, फिर एक्सपैंड हुआ, कंप्रेस हुआ, लगातार ऐसे ऐसे चलता है। ये साइक्लिक प्रोसेस में ही ये वैलिड है, ध्यान में रखना। क्या? आफ्टर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ चेंजेज। थर्ड भी लिख लो,
It makes no predictions that what will happen. It makes no predictions that what will happen under certain conditions. सर्टेन कंडीशन, ये कोई कुछ चीज़ बताता नहीं है, कोई भविष्यवाणी नहीं करता व्हाट विल हैपन अंडर ए सर्टेन कंडीशन। ये केवल सिंपली कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। ये सिंपली स्टेटमेंट दे देता, कोई कंडीशन वगैरह नहीं बताता। तो ये चीज़ें इसकी लिमिटेशंस हैं। इसका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर, और एक दो टर्म्स इसमें और हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, बट डिफिनीशन ही है। रिवर्सिबल प्रोसेस इन विच सिस्टम इज रिप्लेस्ड। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पहले समझ लो क्या होता है। हमारा इंजन जो है रिवर्सिबल नहीं है, हमारा ये साइक्लिक प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस ये होता है कि एकदम जिस पाथ से जाए एग्जैक्टली उसी पाथ से रिटर्न हो जाए। तो मतलब जितनी एनर्जी जाते समय ये गेन किया है, आते समय उतना लूज करते हैं। तो जो भी है कि एकदम एग्जैक्ट पोजीशन अगर रहे तो ऐसा बहुत आइडियल केस में बहुत इस प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक कहा जाता है। माने एकदम स्लो प्रोसेस, एकदम धीरे धीरे जाए फिर धीरे धीरे आए। लेकिन फिर भी वो माना जाता है कि रिवर्सिबल एक आइडियल केस है, जनरली होता नहीं। हमारा इंजन जो है साइक्लिक प्रोसेस है लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। तो रिवर्सिबल देख लो। अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस सिस्टम रिटर्न्स exactly on the same path as it was traced in forward direction, Electrolysis process is the example of the इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिवर्सिबल। इलेक्ट्रोलिसिस हमारा जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड का जैसे अगर है तो ये कुछ ऐसा होता है, ये रिवर्सिबल मतलब ये इसको अगर आयन में ब्रेक कर दिया जाए, इसको क्लोरीन और सोडियम में, तो ये रिवर्स होकर के फिर बन जाता है। तो ये इसको एग्जैक्टली उसमें लॉस नहीं होता है कुछ। तो ये जो है इसको रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा माना है। इलेक्ट्रोलिसिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस। वो भी एकदम आइडियल केस में हो तो। हियर रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कहा जाता है। irreversible process, irreversible process, irreversible process. In this process system does not return to its original position, system does not return to its original position फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, मैंने पूरी तरह से सिस्टम एक ही तरह से आयरन में जंग लग गया तो ऐसा नहीं कि जंग फिर लोहा बन जाएगा। एक ही डायरेक्ट, ये जो है इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये चीज़ें हमारे पास है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस में आती है।
इस पर एक आध न्यूमेरिकल भी देख लो और ये चैप्टर ख़त्म। एक्चुअली हीट इंजन है और रेफ्रिजरेटर जो अभी नहीं पढ़ाऊँगा, अभी फ़िलहाल निकाल दिया गया है, लेकिन टाइम भी नहीं है, इस नाते अभी छोड़ दो। एक न्यूमेरिकल पढ़ लो। अच्छा, हियर यू हैव गिवन, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। पीवी डायग्राम, हियर इट इज गिवन, it is 2 1, A है, ये B है, ये C, it is 2 4। मीटर में है, प्रेशर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब कि ये हमारे पास एक 4 है और यह 2। बुक में उल्टा लिखा है, लेकिन हम लोग सीधा कर ले, क्या करना, बुक में भी उल्टा लिखा है सब। ये जो है यहाँ पे 1 होगा, ये 4 होगा, 1 4 है, और फिर यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा। ये पूछा है कि ABC है, व्हाट विल बी द calculate, note down, calculate the work done under this PV diagram, calculate the work done, calculate the work done from A to B, B to C and C to A and C to A. Also calculate the work done in complete cycle. Also calculate the work done in complete cycle. Work done in complete cycle. A to B, here try to understand, A to B expansion take place, हमने बताया था A to B expansion take place, so work done will be पॉजिटिव। इज इट क्लियर? मीन्स ये डायग्राम होगा एरिया ऑफ दिस ACLAM, ऐसे कर रहे हैं, इसकी एरिया जो होगी दैट विल बी द वर्क डन। पीवी डायग्राम हमने इंडिकेटर डायग्राम में बताया था, एरिया अंडर द पीवी डायग्राम गिव्स द वर्क डन। तो इसमें पूछा है फ्रॉम A to B, A to B का मतलब हो जाएगा एरिया अंडर दिस, मतलब एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ACLAM। इज इट क्लियर टू ऑल? ACLM एक ट्रेपेजियम हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ, वर्क डन अलोंग ए जो है, ये जो है ABC, ऐसे AB का जो है AB अलोंग AB, तो ये जो है AB के अलोंग जो हो जाएगा, AB के अलावा क्या हो जाएगा, एरिया अंडर दिस, इसकी हम एरिया निकाल लेंगे। तो सम ऑफ ये पैरेलल साइड हो जाएगा, पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाइट मीन्स ये डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है ना?
तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ABLM, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABLM, यही हमारा वर्क डन अंडर AB। और इसमें हमारे पास इट इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ये कितना हो गया, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू हो गई 4, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो इट इज 4 + 2 इंटू हाइट इज, तो ये वैल्यू हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास यही हमारा हो जाएगा वर्क डन, यही। और अलोंग BC क्या होगा, BC वर्क डन अलोंग BC, कंप्रेशन टेक प्लेस, सो वर्क डन विल बी नेगेटिव। लेकिन यह वो कितना कंप्रेस हुआ, इसकी एरिया ले लेंगे, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल BLMC, ये BLMC या BCML ले लो, BCML, एरिया अंडर BC, मतलब सेकेंड पार्ट में वर्क डन ड्यूरिंग BC, वर्क डन फॉर BC, since compression take place so work done will be negative, compression take place so work done will be negative, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो लेंथ ML इंटू दिस CM, और ये वैल्यू हम ले लेंगे, ये 2 हो जा रहा है और ये कितना हो जा रहा है 3, तो 3 इंटू 2, तो -6 हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना। तो ये जो है ये इस तरह का निगेटिव हमें ये वर्क डन हमारा कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे BC के केस में निगेटिव मिल जाएगा। और सेकंड केस में इसमें हो जाएगा वर्क डन विल बी नेगेटिव और एरिया ऑफ BCML, और इसको फिर एरिया से निकाल लेंगे, इसको लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और सेकंड केस में जो मिल जाएगा, थर्ड केस, व्हाट विल बी द वर्क डन अलोंग CA, CA में क्या होगा, हाँ नो एक्सपेंशन, नो कोई चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम रिमेनिंग द सेम, सो वर्क डन विल बी 0। इस टाइप के ग्राफिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। बात समझ आ रही है, तो इसको इस तरह से हम लोग कर लेंगे, ग्राफिकल क्वेश्चंस। और वर्क डन इन ए कंप्लीट साइकिल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, वर्क डन इन ए कंप्लीट साइकिल मतलब बेस इनटू हाइट, बस समझ आ रहे ना। तो ये जो है, तो वर्क डन इन ए कंप्लीट साइकिल का मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। इस पूरे साइकिल में, इसके पहले जो थ्योरी पढ़ाई गई थी कि साइक्लिक प्रोसेस में